یہ اسی ڈرامے کی دوسری قسط ہے۔ کیا نیب نہیں جانتا کہ 2 سال پہلے بھی اسٹیٹ بینک نے اس کی واضح تردید کر دی تھی؟ کسی رتی بھر ثبوت بلکہ رتی بھر شک کے بغیر میرا نام بھارت کو اربوں ڈالر کے منی لانڈرنگ میں ملوث کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نیب اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے شواہد سامنے لائیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قوم سے کھلے عام معافی مانگے۔ جب بھی نیب نے کسی شکایت کی جانچ پڑتال کی تو اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے کہ نیب کی ہر کارروائی بلا امتیاز ہے، ہر تصب سے بالا تر ہے۔ نہ کوئی خلائی مخلوق ہے، نہ کوئی ہم خوفزدہ ہیں۔ نیب کو آئینی اور قانونی مطابق کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا آج اہم اجلاس ہوا میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت۔ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ نیب کی 8 مئی کی پریس ریلیز کے معاملے پر جو نیب اس کے خلاف تمام قانونی آپشنز مسلم لیگ نون استعمال کرے گی، اور اس میں ڈیفیمیشن ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے، اسمبلیوں میں قراردادیں اور تقاریر و تنقید، یہ وہ تمام لیگل آپشنز ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کنسیڈر کر رہی ہے، ان پر غور کیا جا رہا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں یہ آپشنز نون لیگ کی طرف سے ایکسرسائز کیے جائیں گے۔ اور اگر نون لیگ چیئرمین نیب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتی ہے تو اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا، اور پروگرام میں بات ہوگی نون لیگ کے ارکان پر دباؤ ڈال کر وفاداریاں تبدیل کون کروا رہا ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے بقول خلائی مخلوق متحرک ہے تو وزیراعظم شاہد حقان عباسی صاحب انہیں بلا کر ان سے وضاحت طلب کیوں نہیں کرتے، اگر انہیں کسی سے بھی گلا شکوہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کو یہ خلائی مخلوق نظر کیوں نہیں آتی، انہیں نظر نہیں آتی، وہ کسی مصلحت کا شکار ہے یا پھر ان کا بیانیہ ہی نواز شریف سے مختلف ہے۔ اور بات ہوگی پاک امریکہ تعلقات کی، جن میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ امریکہ اور پاکستان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب، سید نوید قمر صاحب اور چودھری جعفر اقبال صاحب۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک دا شو۔ پروگرام میں گفتگو سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت برائے میری ٹائم افیئرز اور نون لیگ کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ شاہ صاحب، قانونی چارہ جوئی کا جو فیصلہ کیا ہے آج مسلم لیگ نون نے، اس میں تمام قانونی آپشنز ایکسرسائز کیے جائیں گے چیئرمین نیب کے خلاف۔ اس میں ڈیفیمیشن ہے، تقریر و تنقید ہے، قراردادیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا، مگر ایک رائے ہے کہ مقصد اس ساری ایکسرسائز کا چیئرمین نیب کو گرفت میں لانا نہیں، بلکہ ادارے بالخصوص جو ریفرنسز شریف خاندان کے خلاف چل رہے ہیں نیب میں، اس سارے عمل کو متنازع بنانا ہے۔ تو آپ کی رائے کیا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ اس سارے ادارے کو متنازع بنانا، ان کی ذات کو دباؤ میں لانا مقصود ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا وہ دباؤ میں کیوں آئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے ان سے گستاخی کیا ہوئی ہے؟ گستاخی یہ ہے کہ ایک ایسے آرٹیکل پہ انہوں نے نوٹس لیا کہ ایک شکایت آئی ہے، ایک شکایت آئی ہے، اس کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، کوئی ریفرنس فائل تو نہیں کیا۔ وہ اگر وہ سمجھیں گے کہ اس میں جان نہیں ہے تو ضروری تو نہیں اس کو آگے اس کا ریفرنس بنائے۔ کتنے ملائن کیا گیا نا میں یہ نہیں، دیکھیے سوال یہ ہے ملائن کیسے کیا گیا؟ ملائن تو نہیں کیا گیا، ایک بندہ شکایت کرتا ہے، اس شکایت کی تحقیق کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں نیب کے کیسز چل رہے ہیں کہ آپ دباؤ میں ڈال کر، یہ ایک آرٹیکل تھا، اس آرٹیکل میں شاید تھوڑا سا ریفرنس بھی دے دوں، آرٹیکل کے بھی کتنا کریڈیبل تھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اس میں کانٹینٹ اس کا، اس میں جو محمد توصیف الحق صدیقی صاحب ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں محمد، ایک جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ کے وہ کتنا کریڈیبل تھا وہ آرٹیکل، محمد اسحاق ڈار، کیپٹن صفدر، مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی چلی گئی۔ یہ 28 جولائی کے فیصلے کو کوٹ کر رہے ہیں، نہ تو مریم نواز قومی اسمبلی کی رکن ہے، نہ اسحاق ڈار صاحب رکن ہے۔ تو یہ دیکھیے بڑی غلطیاں اس آرٹیکل کے اندر موجود ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور اگر اتنا لغو تھا یہ آرٹیکل
तो आप हंस के उसको मतलब टाल देते, रद्दी की टोकरी में फेंक देते। देखिए ना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है शाह साहब, इस टाइम तो उन्हें मौका मिल गया। टाइमिंग मौका तो देखिए, मौका तो तलाश में पहले ही थे। आपके इल्म में है, मौके की तलाश में तो वो पिछले जब से पैनमा शुरू हुआ है और वो उस पकड़ और गिरफ्त पे आए हैं, वो तलाश कर रहे हैं, कभी एक इदारे पे, कभी दूसरे इदारे पे, हाँ, कभी खलाई मखलूक उनको याद आ जाती है, ठीक है। जैसे उस दिन मैंने बिलावल का जुमला इंजॉय किया, उन्होंने कहा आपका साथ दें तो खलाई मखलूक भलाई मखलूक हो जाती है। अच्छा था, इंटरेस्टिंग। और लेकिन अगर आपका साथ ना हो तो खलाई मखलूक हो जाती है। तो फिर आप मान दें ये जो नोटिस लिया, जो प्रेस रिलीज थी, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको फिर विंडिकेट नहीं करती, जो विच हंटिंग का कहते हैं कि विच हंटिंग हो रही है हमारे खिलाफ, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, तो ये तो उसने तो तकवीत बख्शी उनके। अर्ज ये है, विच हंटिंग तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि इस इदारे को मौसर होना चाहिए। ये इस इदारे को गैर मौसर करना चाहते हैं। ये तो इदारे को चाहते हैं कि उसी अंदाज में चले जैसे पिछले 5 साल चलता रहा, है ना, पूरे। और इन्होंने तरमीम भी की, कानून भी बनाना चाहा कि उसके बिल्कुल दांत निकाल दिए जाएं, नाखून निकाल दिए जाएं, और तो बेज़र किस्म का इदारा जो है वो खरामा नीचे तो अब भी इदारा वही है, चेयरमैन ही तब्दील हुआ है। तो लेकिन लीडरशिप का बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल चेयरमैन का फर्क पड़ता है। चेयरमैन तब्दील हुआ है तो चेयरमैन की कारकर्दगी से आज तकलीफ भी तो हो रही है। हाँ, नवीद कमर साहब, चेयरमैन नैब की तकरीरी में जितना किरदार वज़ीर आज़म का था उतना ही आपकी पार्टी का भी था, अपोजिशन लीडर साहब की उसमें पूरी मुशावरत शामिल थी। तो पीएम साहब तो कहते हैं कि मुझे बड़ी इस पे शर्मिंदगी हुई अपने फैसले पे, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने गलत फैसला किया इन चेयरमैन नैब का इंतखाब करके। कोई इस तरह का रेगुलेट पीपल्स पार्टी भी फील करती है? पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून कई चीज़ों पे शर्मिंदा है, हाँ। जो कि उन्होंने माजी में किए हैं और गलत फैसले किए हैं। ये मेरे हिसाब से किसी सूरत गलत फैसला नहीं था। अच्छा। कंसेंसस से आना था ये नाम, और कंसेंसस से आया। अब सवाल ये है कि अगर वो जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो फिर फैसला गलत हो गया। अब ये अजीब सी एक बात। तो ये जो आज फैसला हुआ है नून लीग की पार्लिमानी नून लीग की आज मजलिस आमला में कि हम कानूनी चारा जोई करेंगे, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा पीपल्स पार्टी का? मैं थोड़ा सा इस पे भी जवाब दे दूं। क्या जो नैब ने क्या किया जो कि गलत था, और फिर मज़ाक़-ए-ख़ेज़ एक आर्टिकल है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं लगती प्राइमा फेस है। हाँ, सही। और जो बेसिस वो बना रहा है एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का, वो 2 साल पुरानी है, और वो भी उसकी भी जो है, और कहीं वो नेक्सस उन्होंने भी नहीं बनाया मियां नवाज शरीफ से। सो एक रिडिकुलस इशू था। जहां नैब ने गलती की वो था, इंक्वायरी तो खैर उनके पास जो भी आता है, उन्होंने प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी करके चीज़ को इधर या उधर कर देना था। उन्होंने प्रेस रिलीज दे दिया। जहाँ प्रेस रिलीज आया तो वहाँ फिर वो जो है नेशनल डिबेट में वो चीज़ कन्वर्ट हो गई सारी जो ट्रायल बाय मीडिया शुरू हो गया ना। ट्रायल मीडिया ने फौरन डाइसेक्ट करके हकाइक भी सामने ले आया मीडिया। हाँ, लेकिन वो तो इसलिए कि बहुत ही एक्सट्रीम की रिडिकुलस खबर थी ना। लेकिन नॉर्मल केसेस में जब ये किया जाता है तो किसी को मलाइन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। टू दैट एक्सटेंट उनका वो इंटेंट आपको यहाँ भी नजर आ रहा है उस तरह का मलाइन करने वाला? वरना क्यों दिया? हाँ, क्यों दिया? पहले देखते हैं कि भाई इसमें कोई मीट है, अगर नहीं है तो साइड पर रख देते ना। उसको जो है मीडिया में लेके जाने का मकसद ये था कि एक चीज को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पे बाय एंड लार्ज सबका रिएक्शन यही आया है कि ये नैब ने सही नहीं किया। अब जो चीजें करने मुस्लिम लीग जा रही है, वो सब की सब जो हैं वो फिर लोग इनको बुरा बुला के ना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिगेट ज़ाहिर करेगा, मुझे करेगा, इनको करेगा। तो बात वही आ जाती है ना, मकसद टारगेट चेयरमैन नैब नहीं है, टारगेट बल्कि जो तासर है, बात की कि वो सारे अमल को मुतनाज़ बनाना है जो 100% चल रहा है, कि वो इस पर्टिकुलर इशू को नहीं, बल्कि पनामा से लेके बाकी जितनी और चीजें नैब कर रहा है सारी उसके आ गई उसके अंदर। अब उसको जो है वो
मुतनाज़ा बनाना एकदम। चौधरी साहब, शाह साहब ने भी बात की, वेरी वेल पॉइंटेड आउट, कि इदारों को मजबूत नहीं बनाया मुस्लिम लीग नून ने। यहाँ बात सिर्फ चेयरमैन नैब की नहीं है, पूरे इदारे की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप पर तनकीद यही होती है कि आपने इदारे मजबूत नहीं होने दिए। जब इदारे मजबूत नहीं होंगे तो फिर इसी तरह के फैसले आएंगे सामने, इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे दोनों ही मेंबरान हर लिहाज सीनियर हैं और ऐवान में भी जब ये गुफ्तगू करते हैं तो हम सीखते हैं, सुनते हैं। सीनियर से सीखना चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली। और लेकिन ये बात अभी जिस पे हम कर रहे हैं और उस पे एकदम मुस्लिम लीग नून पे इस हद तक वो आ जाना कि हमने इदारों को नहीं, हमने तमाम इदारों को अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी नहीं, पिछले 5 साल भी मेरी बतौर सियासी वर्कर ये ख्वाहिश भी रही, दुआ भी रही कि जो आइन और कानून के मुताबिक दर्ज है, हमारी अपोजिशन भी और हुकूमत भी मिलकर वो सारे फैसले करे और आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और इन 10 सालों में वो एक तसलसल नहीं, मैं इन 10 सालों में आपको एक तसलसल नज़र आया। अपोजिशन, हुकूमत जो मिल के फैसले करने वाले थे वो भी हुए, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने पहले से ये इंदिया दिया कि हाँ, लोग जो कह रहे हैं कि हम कंसेंसस नहीं कर पाएंगे, वज़ीर आज़म जो होंगे निगरान, तो अभी से उन्होंने इंश्योर किया कि अपोजिशन जो भी नाम लेके आएगी हम उन्हें कबूल करेंगे। लेकिन सर, ये सियासी इस्तेहकाम, सुन ले मेरी बात, सुन ले। जब चेयरमैन नैब का तकर्रुर था तब भी ऐसे ही हुआ, अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना था और मिल के किया। और जिस हद तक आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब इस तरह की बात आएगी, लेकिन सर जब इस तरह इंक्वायरी इनिशिएट करते, बहुत अच्छी बात है, एक खबर पे ले लेते, आज खुद नोटिस ले लेते, या कोई दरखास्त की, मैं आपको आपकी बात यहाँ दरखास्त एक मिनट थोड़ा सा यहाँ दरखास्त कोई आती तो करते। लेकिन जब एक पहले से माहौल इस तरह का बना है कि आपने पनामा की बात की, उसके ऊपर इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, JIT बनी, बिल आखिर आपको वो अकामा मिला, वो वीजा मिला, आप कोई चीज ऐसी सामने ना ला सके। लेकिन आप जो मियां नवाज शरीफ, एक मिनट मुझे उस तरफ जाने दें, वो इसी से रिलेटेड एक नुक्ता है कि आप कह रहे कंसेंसस हमने पैदा किया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम कंसेंसस में आगे चले। कंसेंसस आपका नैब पर भी पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि जब आप हुकूमत में आए 2013 में, तो जब पहली मुलाकात हुई उसमें हमने तजवीज़ दी नवाज शरीफ साहब को कि नैब का कानून बदलें, आप इसे आबर का कानून कहते हैं, बदलें। इत्तफाक राय हो गया, फिर आपके ही एक इत्तफाकी वजीर के कहने पर ये कानून जो है इसमें तब्दीली नहीं की, कमेटी भी बन गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिनके ऊपर आगे न बढ़ सके। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो पहली आपको पार्लियामान जो पिछले गुजरे हैं उनमें आपको नज़ीर नहीं मिलेगी। आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, आपकी मुसल्लह अफवाज की शिरकत हो सऊदीया और यमन के मामले में, आपकी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो, आपकी जो है ये जिस तरह अभी नैब का मुकर्रर करना या निगरान हुकूमत का, और उसके अलावा भी ये फाटा की अभी बात आई। ये अलग बात है कि जब हमारे नहीं देखें, जब पहली लाइन में बैठने वाले मिल बैठे तो बतौर सियासी कारकुन मेरे लिए ये एक ठंडी हवा का झोंका है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान भर के अवाम के लिए। वहाँ ये क्या फैसले करके उठते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, और मैं तवक्को रखता हूँ कि आइंदा आने वाला जो पार्लियामान होगा वो इससे ज़्यादा कंसेंसस डेवलप करके और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे चलेगा। शाह साहब, जब वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दी थी कि कमेटी बना के चेयरमैन नैब को तलब किया जाए, तो तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल उसकी मदद करती थी। अब अगर ये कानूनी चाराजोई शुरू होती है तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आप किस तरह से इसको करेंगे? बात यह है कि वो एक आइनी इदारा है, एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको तलब करने का कोई जवाज़ ही नहीं उठता। आप किस तरह तलब कर लेंगे और क्यों तलब कर लेंगे? इसलिए कि अब आपका तसाब के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो तलब तो यहाँ पे आर्मी चीफ ने भी आके ब्रीफिंग दी है, DGI ने भी आके ब्रीफिंग दी है वान को या कमेटी को। देखिए तलब, देखिए सवाल ये है, ब्रीफिंग देना और बात है, एतमाद में लेना और बात है, तलब करना कि तुमने ये गुस्ताखी की हम पर, ये कैसे की, तलब करने का कोई मकसद नहीं है, और ना ही कोई तलब करने की उनको इजाज़त देगा, और ना ही वो आएंगे। वो क्यों आएंगे? वो खुद मुख्तार हैं, आपका केस उनके सामने है जी। तो आप जो मतलब उल्टा चोर को तवाल को डांटे,
ये कभी नहीं ऐसे होता। नवीद कमर साहब, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने जब बात की थी, मेरा सवाल भी आप ऐड भी कर लें, मेरा सवाल भी है कि वहाँ पे आपने कहा था, तहरीक इंसाफ ने तो मुखालफत कर दी थी कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो आपने कहा था कि आप पार्टी से मुशावरत करने के बाद बताएंगे कि आया चेयरमैन नैब को पार्लिमानी कमेटी के अंदर आना चाहिए या नहीं, तो फिर क्या फैसला हुआ? फैसला तो वही हुआ जो सारी ऑपोजिशन का एक ही फैसला है कि नहीं, हम वैसे भी मेरा पर्सनल राय उस वक्त भी यही थी कि ये एक टोटली गलत प्रेसिडेंट हम सेट करेंगे कि एक अलग इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने क्रिएट पार्लियामेंट ने किया, लेकिन क्रिएट किया कि अब हर छोटी मोटी चीज़ पे, जैसे कुछ दिन पहले हम इलेक्शन कमीशन को सब बुला के कह रहे थे कि जी आपने ये डिलिमिटेशन गलत की है, अब हम कह रहे हैं कि जी नैब को कहें कि आप ये, इस तरह से नहीं होता। चेयरमैन नैब आए हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने उन्होंने कई घंटों तक बैठ के सवाल जवाब ये वो सब फुल्ली ओपन किया है, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम उसको समन कर सकते। ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि खलाई मखलूक का जो आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा है, ये किस हद तक मुदाखलत है, और जो नून लीग बात करती है कि हमारे अरकान पर दबाव डाल के उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, इस पर भी बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अब बात हो जाए खलाई मखलूक, जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा है आजकल। जाफर इकबाल साहब, खलाई मखलूक की मुदाखलत की आजकल काफ़ी चर्चा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि खलाई मखलूक बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वही सारा कुछ कर रही है, वफादारियाँ भी तब्दील करवा रही है। टेलीफोन कॉल्स का जिक्र भी किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि कुछ अरकान को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, वफादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। तो आपने भी कुछ जिक्र किया था कि आपको कॉल्स वगैरह आई थी, तो अगर ऐसी कॉल्स कोई आ रही हैं, इस वक्त सरबराह प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए, वो बुलाएं जिस पे उन्हें शक है या गिला है, जिससे उनसे वजाहत तलब करें। ये गिले शिकवे क्यों कर रहे हैं? देखिए, इससे इनकार कोई करे कि पाकिस्तान की सियासत में आज से पहले क्या होता रहा। जब 2002 के इंतखाबात हुए तो उसके बाद किन किन पार्टीज़ को तोड़ के और एक किंग्स पार्टी बनाई गई, वो किन्हों ने तोड़ी, कैसे वो बनी, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट कहाँ इनकार करेगा। उससे पहले ये हिस्ट्री है, बात अगर मेरे पे आएगी या मेरे लीडर पे आएगी तो भी ये हिस्ट्री है। जुनेजो साहब की हुकूमत थी तब क्या हुआ। तो ये तो ऐसा सच है जो बोलना चाहिए भी और बोलना पड़ेगा भी। और इसको चाहे आप अगर ये कहा जाए, जहाँ भी खड़े हैं, और ये कहा जाए कि आज आप इसका कोई हल कर लेंगे, अभी मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि मेरे मुल्क की सियासी जमातें इस काबिल नहीं कि वो किसी भी ऐसी चीज़ का मुकाबला कर सकें। ना जमातों के अंदर वो जमहूरियत है। मुकाबला करेंगे खलाई मखलूक का? देखें, करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे, और वो माहौल भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मेरी सियासी जमातें, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उतनी जमहूरियत, हम इलेक्टेबल्स के मुताज हैं आज भी। तो ये आज की किंग्स पार्टी का तहरीक इंसाफ की आज भी इलेक्टेबल्स के मुताज हैं। आज भी नजरिया, आज भी वो वर्कर, आज भी वो चीज़ें नहीं है, वो सब कुर्बान हो जाती हैं, भूल जाती हैं जब ये वक्त आता है। और ये सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं, तमाम पार्टीज का है। अब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? जब इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए, अगर मेरे कायदीन, ये दो तो सरबराह बैठे हैं वहाँ शरीक होते रहे, मेरी राय उस पार्लिमानी बोर्ड में उतनी नहीं पहुँचती जितनी ये खुद बैठे हैं, दो चीज़ें कर लेते। मेरे ख्याल इंडिया में पाबंदी है कि अगर कोई पार्टी चेंज करे तो अगले 5 साल तक ना किसी दूसरी जमात का ओहदा ले सकता है और ना ही वहाँ टिकट। अगर मेरे इन सारे कायदीन को मेरी जमात बशमूल जमहूरियत, इक़्तिदार, इख़लाक, इन सब से प्यार होता तो ये करते। फैक्ट है कि टाइमिंग देखी जाती है, इस टाइम पे किस पार्टी को इस चीज़ कर लेते। दूसरा काम ये करते कि इलेक्टेबल से जान छुड़ाने के लिए कि वो गलत हैं, सही हैं, कल कहीं और थे, गलत थे, आज मेरे साथ हैं, तो उसके तहत ये लिस्ट वाला जो आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका कानून और कायदा लेकिन नहीं चाहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। किंग्स पार्टी की बातें भी हो रही है कि किंग्स पार्टी उस वक्त काफली का रेफरेंस दिया जाता है, आज यकीनन तहरीक इंसाफ की तरफ ये रेफरेंस दिया जाता है। और आपका तो ये कहना है कोई जरूरी नहीं, आप तहरीक इंसाफ पे न लगाएं, ये सादिक संजरानी साहब की और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फिर सेनेट में जो हुआ वो भी हो सकता है। आज तो लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं सर, सेनेट में किंग्स पार्टी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शामिल करवाए जा रहे हैं, हो नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं। देखिए पहली बात तो आ जाए खलाई मखलूक वाली बात। पहले तो ये फैसला कर लें अपने घर में कि कौन दुरुस्त कह रहा है।
नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं खलाई मखलूक है जो मदाखलत कर रही है, और शहबाज शरीफ उसकी बिल्कुल नफी कर रहे हैं। तो पहले तो बताएं कि छोटे मियाँ साहब की बात माने या बड़े मियाँ साहब की बात माने? कारकुन पार्टी सदर की बात माने या कायद की? सदर की माने या कायद की माने? सदर भी कायदी की बात मानते हैं। कहाँ मान रहे हैं सदर? नहीं नहीं, वो तो कायद की मनफी कर रहे हैं, वो तो नफी कर रहे हैं। शहबाज साहब को सदर मियां नवाज शरीफ के मुंह से अल्फाज निकले वो बने प्राइम मिनिस्टर के लिए शाहिद खान साहब का खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं। वो बात नैरेटिव की, बयानिया की बात हो रही है। बयानिया शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ साहब का मुख्तलिफ है। चौधरी निसार पर भी आपने चौधरी निसार साहब का भी मुख्तलिफ है, इस इशू पे भी मुख्तलिफ है। ठीक है जी, एक। नंबर दो, ये कहा जा रहा है कि फलां के टेलीफोन से इधर हो गया उधर हो गया, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो फैसला करते हैं ना समर, वो सियासी लोग हैं, उन्होंने इंतखाबात लड़ने हैं, उन्होंने अपने हालात को देखना है। अब लोग कुएं में छलांग कोई नहीं मारता, कोई अपनी खुदकुशी कोई नहीं करेगा, ठीक है ना? किसी के टेलीफोन कॉल पर आप इंगेज करते हैं, आप फैसला करते हैं कि ये फैसला करने से मुझे सियासी तौर पे नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा। साहब, जिसने नहीं जाना होता वो नहीं जाता, नहीं जाता। साहब की मिसाल सामने है, बेपनाह मिसालें, लोग नहीं गए। बात यह है कि इस वक्त उनकी कैलकुलेशन में जो लोग आए हैं नून छोड़ के, वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ उनको एक बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आइंदा इंतखाबात के लिए, तो वो एक सियासी फैसला कर रहे हैं। जिस तरह इनके साथ बहुत से लोग जो काफ लीग के हैं, जो थे काफ लीग के और इनके साथ शामिल हुए, जो काफ लीग में गए थे, वो आज क्यों आए इनके साथ? क्योंकि इनको 2013 में नून एक बेहतर ऑप्शन दिखाई दिया। आज ताज़ा तरीन खबर यह कि मुल्तान के बागी भी वापस आ गए हैं नून लीग के कैंप में। देखिए, आपके बैकयार्ड में जलसा भी हो रहा है मुल्तान में, बिल्कुल जलसा हो रहा है। और मैं उनको उस जलसे पे, देखिए, वो एक सियासी पार्टी है, वो एक सियासी कायद है, वो मुल्तान तशरीफ ले आते हैं, मैं उनको खुशामदीद कहूँगा, ज़रूर जाएं, उनका वहाँ जाना उनका हक है, जाएं, बात करें। बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में मुझे किसी ने कहा कि वहाँ किसी इश्तिहार पर उनके नून के इश्तिहार पर स्याही फेंकी गई या कालक लगाई गई, मैंने उसकी मजम्मत की और आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के इश्तिहार पर स्याही फेंकी जाए, कालक लगाई जाए, ये कोई सियासी रवैया नहीं है। आज जब नून लीग बात करती है खलाई मखलूक की, ये खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा है जब इंतखाबात होते हैं तो खलाई मखलूक का किरदार कहीं ना कहीं होता है, ये आप भी मानते हैं। तो फिर आज मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है नून लीग की इस बात का? आप भी मानते हैं, आपके साथ भी ये हुआ जब आपको भी टेलीफोन कॉल्स वगैरह नैब वगैरह से आई थी कि आप वफादारी तब्दील करें? ये तो फैक्ट होता है। नहीं, ये तो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है 1990 के इलेक्शंस के बारे में, जब उससे पहले 88 में IGI बनाई गई, किसने बनाई? ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई। उसके बाद 90 में पैसे जमा हुए, कहाँ से है, सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। तो ये कहना, असगर खान केस जो है उसका भी फैसला एक दफ़ा आ जाए ताकि बात आगे क्लियर होनी चाहिए। हाँ, या फॉर दैट मैटर 2002 की जो बात हो रही है, सिर्फ क्यों नहीं बनी, इलेक्शन के बाद जो पेट्रियट बनी, वो तो उससे भी ज्यादा ब्लेटेंट थी ना कि इलेक्ट होने के बाद टिकट पे उनको दौड़ते जाओ जब तक कि आपका 172 का नंबर पूरा नहीं होता, फिर कोर्ट से जाके फिर भी इतनी मुशक्कत के बाद वो PM बने थे। जाहिर है कि एक एक्टिविटी उनकी तरफ से होती है, अब कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। कुछ इलेक्शन आजकल ज्यादा हो रही है नून लीग जो गिला कर रही है। आई डोंट नो, वो तो जब अभी तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चलना है, कौन कितनी होती है कितनी नहीं होती, वो तो उस चीज पे आदमी बता सकता है, लेकिन वो होती ज़रूर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं मखदूम साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जिसने जाना है वो ही जाएगा। हाँ। जिसने नहीं जाना उसको फोन कॉल्स आए या वो खुद कोई वर्दी वाला पहुंच जाए उनके दरवाजे पे, वो नहीं जाए। सो इट इज only a matter of your own। जी जाफर इकबाल साहब रिस्पॉन्ड करते फिर हम बात आगे बढ़ाए कि जिसने जाना है उसने जाना है, वो खलाई मखलूक तो एक बहाना। जिस तरह वो खुर्शीद शाह साहब एक बात करते होते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा तो बहाना था,
मकसद नून लीग से जान छुड़ाना था, तो वो जाने वालों ने जाना था, वो चले ये गए। बात दुरुस्त है। हमारे वो साथी बड़े काबिल एहतराम हैं, इलेक्ट हो के आए, लोगों ने वोट दिए, हमारे साथ 5 साल रहे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खुसरो बुख्तियार साहब की वो बजट स्पीचेस जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के बजट के हक में करते रहे, वो निकाल के देख लें। दानियाल अजीज की वो तकरीर वो शरफ के हक में थी, वो भी देख लें। और आज वो जो कर रहे हैं वो देख लें। ये बिल्कुल बहरहाल ये बड़ी एक अच्छे खूबसूरत लफ्ज़ों में मखदूम साहब ने बात की कि लोग माहौल देखते हैं। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से कहूँगा कि खुदारा ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं जो माहौल देखते हैं, जो नज़रियाती हैं, जो आपके वोट की कदर करते हैं, जो अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं। आम हम देहाती ज़िंदगी में कहते हैं जी फ़लाँ बड़ा दड़े वाला है। चलिए, आप कौन मौके पे खड़ा रहा, अवाम के दड़े के कौन मौके पे खड़ा रहा, इस पर बात होगी। या एक ब्रेक लेनी है मुझे, फरमाया। और नहीं सर, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। एक जुमला आपने बड़ी सही बात की। सवाल ये है, अगर नजरियाती लोगों को तरजीह देनी है तो जिन लोगों ने वफादारी तब्दील की और आपके खिलाफ जलसों में तकारीर की, आज उनको शामिल कर रहे हैं। तो ये नजरिया कहाँ गया? चौधरी निसार साहब भी कहते हैं ना, मैंने तो कहा सब पार्टियों में। देखिए आज मुल्तान में क्या हो रहा है, आज मुल्तान में क्या हो रहा है, जिन्होंने आपको धो दिया, आज उनके घर जाके शामिल कर रहे हैं। तो ये क्या है? ठीक, मैं तो ये सारी पार्टियों की चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर। अगर शफकत करते तो ये पाकिस्तान सारे इस खिचड़ी से निकल जाता। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। ब्रेक से पहले शाह साहब आप बात कर रहे थे जावेद हाशमी साहब से मुतालिक। उन्होंने नून लीग में दोबारा से शमूलियत इख्तियार कर रही है। आपकी पार्टी के नायब सदर वो रह चुके हैं, छोड़ के गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका सियासी फैसला है और उन्हें अपने फैसला करने का हक है। उन्होंने फैसला किया। यकीनन जब उन्हें नून लीग छोड़ी होगी तो उसके पीछे कोई उनकी सोच होगी और कोई वजूहात होंगी, ठोस वजूहात होंगी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नून लीग को छोड़ा। आज अगर गए हैं नून लीग में दोबारा शामिल हुए तो शायद उनके पीछे कोई सोच होगी तो उनको दोबारा वहाँ ले गई है। तो ये तो फैसला नून की क़यादत ने करना था कि जो छोड़ गए उनको लेना है, कब लेना है और क्या मकाम देना है। ठीक, क्या साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा मैं। एक और बड़ा अहम नुकता है जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, सफारतकारों पर पाबंदियाँ लगी हैं, उसमें एक बड़ा अहम नुकता है जिस पर लिखा गया जो जिन चीज़ों से रोका गया है अमेरिकन एम्बेसी को, जो खत लिख के कहा गया है, इंस्टॉलिंग रेडियो कम्युनिकेशंस एट रेजिडेंसेस इन सेफ हाउसेज विदाउट प्रायर एनओसी। ये सेफ हाउसेज भी अमेरिका ने बना रखे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आपको पता होगा इस चीज़ का, और हमारे भी कोई सेफ हाउसेज हैं वाशिंगटन में। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पाबंदियाँ उन्होंने पहले हम पे आयद की, हमने तो एक रेसिप्रोकल काम किया ना, जवाबी कार्रवाई की, रेसिप्रोसिटी जिसको कहते हैं। हम समझते हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि वो जो हम पे पाबंदी लगा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, वो पार्लिमानी कह रहा हूँ, सफारती आदाब के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। हमने कोशिश की, हमने इंगेज करने की कोशिश की, ऐसा ना करें, वो नहीं माने। जब वो उन्होंने इम्पोज कर दी तो हमने भी वैसा ही किया। अब सेफ हाउसेज यहाँ हैं या नहीं, इसका वजारत ख़ारजा से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा। ये तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बता सकती है या मिनिस्ट्री इंटीरियर बता सकती है। तो हमारा भी कोई है डीसी में? नहीं। नवीद कमर साहब, ये सेफ हाउसेज वाला बड़ा मामला सामने आया है। पाक अमेरिका ताल्लुकात जिस जगह पर चले हैं, आप हमेशा से कहते रहे पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी नकाद रही हुकूमत की खारजा पॉलिसी की, वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए, बेहतर खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आज जो ये ताल्लुकात जिस नहज पे जा रहे हैं इस पर भी तबसरा ज़रूर कीजिएगा। और जो सेफ हाउसेज का तज़किरा आया है, ये जो लेटर लिखा है हमारी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकन एम्बेसी को, उसमें यह जिक्र है कि जो सेफ हाउसेज पर आप रेडियो नहीं लगा सकते एनओसी के बगैर। ये तो एक इंकशाफ ही है कि यहाँ पे सेफ हाउसेज अमेरिका के क्या मतलब है? अब ये टर्म सेफ हाउसेज यूज़ करना वो तो फॉर सम रीज़न फॉरेन ऑफिस ने यूज़ किया होगा, लेकिन ये तो हमें पता है कि यहाँ पे न सिर्फ नॉर्मल डिप्लोमेटिक जो पर्सनल हैं, लेकिन उनके जो CIA वगैरह के भी ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में, ब्लैक वाटर की बात होती रही, आपके दौर पे ज़्यादा होती रही CIA के ऑपरेटिव्स। कॉन्ट्रैक्टर्स की बात थी, लेकिन रेगुलर वो न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में उनका कोई ना कोई प्रेजेंस होता है। बाकी वो किस हद तक एक्टिविटी करते हैं या नहीं, अपेरेंटली ये उनकी जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट
یوز ہوتی ہے جو نارمل ہمارے ٹیلیفونک وغیرہ کا اس سے، تو اس پہ وہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک ان کو روک تھام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر بلڈ ہوئی ہیں۔ یہاں سے ہم نے کچھ لوگوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹی سے روکا، یا ان کو کچھ ایریاز میں جانے سے روکا، وہاں سے انہوں نے ریئیکٹ کیا، پھر ہم نے فردر ریئیکٹ کیا ہے، تو یہ ایسکیلیٹ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اوور آل اسپیسیفک چیزوں کو میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھے ریزنس ہوں کرنے کے، لیکن اوور آل یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم ایک سپر پاور کے ساتھ ٹیٹ فار ٹیٹ کی اس گیم میں اتنے حد تک نکل جائیں کہ پھر کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے بالکل وہ کافی ارریشنل فیصلے بھی کرتے ہیں، تو پاکستان کو جو ہے محتاط رہ کے اپنے فیصلے کریں۔ جعفر اقبال صاحب، کامنٹ آپ کا کنکلوڈنگ، یہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اور یہ جو سیف ہاؤسز کا تذکرہ آیا، یہ تو ایک انکشاف بھی ہے بیسیکلی۔ میرے خیال سیف ہاؤسز شاید ہم نے پہلے جو سن رکھے ہیں وہ کسی اور ٹرمینالوجی میں سن رکھے ہیں، ڈپلومیٹک لینگویج میں ممکن ہے کہ انہیں سیف ہاؤسز اس طرح کہتے ہوں کہ وہ سفارت خانے، سفارتی عملہ اور اس کے لیے کوئی ایسا نام ہو، ادروائز اس طرح کے سیف ہاؤسز تو ایسا ممکن نہیں کہ کوئی الاؤ بھی کرے اور یا ہوں یا جو استعمال ہوتے ہوں، اس نہج تک حالات نہیں جانے چاہیے۔ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، خواہش رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی جنگ میں اپنے آپ کو دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا بطور ایک ملک شناخت اور ایک قوم شناخت ایسا بھی ممکن نہیں کہ ہم بالکل خاموش ہو جائیں۔ ابھی نوید قمر صاحب نے کہا کہ وہ جو قیادت آج موجود ہے وہ ارریشنل فیصلے، تو میرے خیال ریشنل فیصلے تو امریکنز نے کبھی بھی نہیں کیے، جو بھی ان کے صدر گزرے، وہ ایک سپر پاور ہیں، وہ اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمارے مفاد میں نہیں کریں گے۔ ہم نے ان کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ ڈپلومیٹک بھی ہے کہ آپ اپنے ان الائز کو، ان دوستوں کو جو بین الاقوامی برادری میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایسا ہوا جب امریکنز نے کیا تو اس وقت ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب چائنا بھی گئے، روس بھی گئے، ترکی بھی گئے، ایران بھی گئے، اور افغانستان بھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں ان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور اس ریجنز کی جو پاورز ہیں مل کے اس چیز کو فیس کرنا۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شو میں وقت نکلی۔ ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔